ವಾರ್ತೆಗಳು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಎಚ್. ಚೇತನಾ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2026 ಇಂದು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಕಳೆದ ಜನವರಿ 28ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ 2ನೇ ಚರಣವು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ 2026 ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆ 2026ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂದಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಡೆದ 2ನೇ ವಿಶೇಷ ಸಿಸಿಎಸ್ ಸಭೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೆಂದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕೆಂದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೃಷಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಸಾಗಾಣೆ, ವಾಯುಯಾನ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ, ಇಂಧನ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಿಮ್ 2ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಮಾನಿನಿಂದ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಜತೆಗೆ ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 7ರಿಂದ 8 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಅನಿಲ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ, ಸಾಗಾಣೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈವರೆಗೆ 19 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9.25 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅವರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಕುರಿತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸರಾಸರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಆಧಾರ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಮುಖಚಹರೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಂತರ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ ಮಣೀಂದರ್ ಕೌರ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 185 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. प्रमुख फसल हैं उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। धान जिसका सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग होता है 80.9 लाख क्विंटल, सोयाबीन 35.7 लाख क्विंटल, मूंगफली 21.1, मक्का 11.9 और बाकी तुअर, मूंग और उड़द इनकी पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता है। ये बीज की उपलब्धता सभी राज्यों में पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल है. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯ ಹೂರಣ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ 9:15ಕ್ಕೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ 2 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಂಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಿಯಾಬೋರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿಸ್ಸಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಜಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇಶಬ್ ಮಹಾಂತ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗೋಲಕ್ಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಧುಬ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಟಿಯಾದಹಾದ ಮೇಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಗೋಲ್ಪಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುಧನೋಯಿಗೆ ತೆರಳಿ ದುಧನೋಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ದಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹನುಮಂತನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನೌಟ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ, ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಅಖಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಠಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಹನುಮಾನ್ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜುವಾಲ್ ಓರಾಮ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಿವಾಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ 8ನೇ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಿಎಂಎಂಎಲ್ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಎಂಎಂಎಲ್ ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಆಯ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಭಾಷಣದ ಕೈಬರಹ ಕರಡು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಧಿಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪಿಎಂಎಂಎಲ್ ಪ್ರಕಾರ 2.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಗ್ರಹ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಐಕೈಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದು 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಗದಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 21 ಚಿನ್ನ, 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 7 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 36 ಪದಕ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಸಂಸತ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದಿನಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 12 ಗಂಟೆಗೆ. समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया संघर्ष के दुष्प्रभाव से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। संसद के बजट सत्र का आज समापन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में अमेरिकी सेना जल्द ही अपना काम पूरा कर लेगी। सेना प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के करीब हैं। नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा से चंद्रमा के लिए मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस 2 भेजा। और फुटबॉल में भारत ने भूटान को 5-0 से हराकर सैफ पुरुष अंडर-20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों की समीक्षा करने और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संबंधित पहल पर विचार विमर्श करने के लिए मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति सीसीएस की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का आकलन किया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ तथा रबी फसलों के दौरान इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि चल रहे संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। बैठक के दौरान कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन, रसद और लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा आवश्यक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति में विविधता लाने, ईंधन शुल्क में कमी करने और बिजली क्षेत्र से संबंधित उपायों की समीक्षा भी की गई। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने कहा है कि देश में उर्वरक, बीज और कृषि रसायनों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय बैठक में कृषि विभाग की अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि देश भर में खरीफ फसलों के 185 लाख क्विंटल से अधिक बीज उपलब्ध हैं। जितने भी प्रमुख फसल हैं उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। धान, जिसका सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उपयोग होता है, 80.9 लाख क्विंटल, सोयाबीन 35.7 लाख क्विंटल, मूंगफली 21.1, मक्का 11.9 और बाकी तुअर, मूंग और उड़द, इनकी पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता है। ये बीज की उपलब्धता सभी राज्यों में पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल है। अपर सचिव ने बताया कि वर्तमान खरीफ सीजन के लिए पहले से ही 46% उर्वरक उपलब्ध हैं और कृषि रसायनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि टमाटर, प्याज और आलू सहित प्रमुख फसलों की कीमतें स्थिर हैं और थोक स्तर पर इनमें सुधार दिख रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल का भंडार वर्तमान में पर्याप्त है। हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक 1171 भारतीयों को आवागमन में सहायता की है। इनमें 818 छात्र शामिल हैं जो भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ करेंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग तथा कर्मयोगी भारत संयुक्त रूप से नई दिल्ली में एक सप्ताह के साधना सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पूरे देश के सिविल सेवकों की क्षमता, प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करना है। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और राज्यों के सभी स्तरों के कर्मचारी और अधिकारी इसमें IGOT प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से भाग लेंगे। क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S राधा चौहान ने कहा कि इस दौरान ये देखना होगा कि क्षमता निर्माण किस प्रकार विकसित भारत के उद्देश्यों को साकार करने में तालमेल बनाता है। क्षमता निर्माण आयोग के सचिव जगदीप गुप्ता ने कहा कि ये कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की उम्मीद है। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू हुआ। पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और 2026-27 के केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। वहीं दूसरे चरण में संसद ने वित्त विधेयक 2026 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर सरकार का पक्ष रखा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में 142 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही इस चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 9 अप्रैल तक पर्चे भर सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस बीच चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का कार्य चल रहा है। नामांकन 6 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को चुनाव तिथियों की घोषणा के समय इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। ये प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सभी प्रकार के मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या प्रसार के किसी भी अन्य माध्यम पर लागू रहेगा। ये प्रतिबंध 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मतदान में सिर्फ एक हफ्ता शेष रहते हुए केरल में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और सभी मोर्चों पर मतदाताओं को लुभाने के प्रयास जारी हैं। उम्मीदवार प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बुलाकर अपने प्रचार को और भी प्रभावी बना रहे हैं। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी प्रचार के तहत शनिवार को तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला का दौरा करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज तिरुवनंतपुरम और कुल्लम में यूडीएफ उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। एलडीएफ के समर्थन में सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने कल इडुक्की के पुप्पारा में एक जनसभा में भाग लिया। शीर्ष नेताओं के आगमन से प्रचार में और भी तेजी आई है क्योंकि राज्य मतदान से पहले अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। स्मिथ एम पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह असम विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर असम जाएंगे। श्री शाह नौगांव जिले के कालीबोर निर्वाचन क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के समर्थन में दोपहर बाद 3 बजे मिस्सा हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह कल गोलोकगंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के लिए धुबरी जिले के रतियादाह में मेला मैदान क्षेत्र में सुबह 11 बजे एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग, खाज, खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। नेहा, तुम्हारी नई कार और ये रुतबा, काश मैंने भी कॉमर्स किया होता। अरे राहुल, किसने कहा सीएस के लिए सिर्फ कॉमर्स चाहिए? मैंने खुद साइंस से किया है। सच? आर्ट्स वाले भी? बिल्कुल, किसी भी स्ट्रीम से सीएस किया जा सकता है। इंतजार क्यों? अपने करियर की शुरुआत आज ही करें। कंपनी सेक्रेटरी बनकर अपने सपनों को साकार करें। एडमिशन के लिए लॉग इन करें www.icsi.edu पर।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान में अपने प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है और अमेरिकी सेना जल्द ही अपना काम पूरा कर लेगी। व्हाइट हाउस से प्रसारित अपने 20 मिनट के संबोधन में श्री ट्रंप ने अमेरिकी मिशन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका पहले से ही कहीं अधिक बड़ी जीत हासिल कर रहा है। राष्ट्रपति ने वादा किया कि जब युद्ध समाप्त होगा तो अमेरिका पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, मजबूत, समृद्ध और महान होगा। नासा का 50 वर्षों से अधिक समय के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस 2 के ओरियन अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हो गया है। एक रिपोर्ट। आर्टेमिस 2 के ओरियन अंतरिक्ष यान ने भारतीय समय अनुसार आज सुबह लगभग 3:54 पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। 10 दिन के इस मिशन में शामिल दल एक मिनी बस के आकार के कैप्सूल में चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसेन शामिल हैं। 1967 से 1972 के बीच अपोलो मिशन से आगे बढ़कर इस मिशन में एक महिला और एक गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जीवन रक्षक, नेविगेशन और अन्य प्रणालियों का परीक्षण करेंगे। इसका उद्देश्य भविष्य में मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग के लिए प्रणाली का परीक्षण करना है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार। सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने भूटान को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल भारत की ओर से रोहेन चफाम यूम ने 2 गोल किए, जबकि उमांग डोडुम, मोहम्मद अरबाज और थोकचोम माले मंगनबा ने 1-1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत इस प्रतियोगिता को 4 बार जीत चुका है। इस बीच आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के 9वें दिन आज रायपुर में तीरंदाजी और जगदलपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होंगी। पदक तालिका में कर्नाटक 21 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य के साथ पहले स्थान पर है। ओडिशा 17 स्वर्ण के साथ दूसरे और झारखंड 9 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में आज हनुमान जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी इस अवसर पर लोगों की लंबी कतारें हैं। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले हमारी श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज हम श्री रघुवीर तुकाराम खेड़कर से बात करेंगे। उन्होंने पारंपरिक कला शैली तमाशा को आगे बढ़ाया है। कला क्षेत्र में योगदान के लिए श्री रघुवीर तुकाराम खेड़कर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तमाशा लोगों की जान था। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था। मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। पद्मश्री खिताब मेरे को मिला है, ये सुनकर मेरे जो पुराने अनुभव वो सब मेरे सामने आ गए और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित की जाएगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 1 माह से जारी युद्ध का असर भारतीय कारोबार पर दिखने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, बंदरगाहों में फंसा अरबों का माल, उद्योग संकट में, कामगार मुश्किल में। पत्र लिखता है, बासमती चावल, केले, मसाले, फार्मा और जेम्स ज्वेलरी का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित। वहीं जनसत्ता ने विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने का समाचार दिया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच व्यावसायिक LPG की कीमत में वृद्धि। पंजाब केसरी लिखता है, कमर्शियल सिलेंडर 195 रुपए महंगा, बिना डील ईरान युद्ध से निकल सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी नाटो छोड़ने की धमकी, कहा 2 से 3 हफ्ते में खत्म कर सकते हैं ईरान युद्ध। दैनिक जागरण की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अपने बिजनेस पन्ने पर खबर दी है, 1 साल में बैंक FD का रिटर्न शेयरों से ज्यादा।
पत्र लिखता है 2025-26 में सेंसेक्स 7% से ज्यादा टूटा, पर बैंकों के एफडी का रिटर्न 6% से अधिक। किताबें और वर्दी खरीदने के लिए निजी स्कूल नहीं करेंगे मजबूर, शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने आदेश जारी किया। अमर उजाला की सुर्खी है, नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर संकट पर नाटो शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य अलायंस नाटो के टूटने की आशंका पैदा हो गई है और अमेरिका इस अलायंस से निकलने की सोच रहा है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया संघर्ष के दुष्प्रभाव से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। संसद के बजट सत्र का आज समापन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में अमेरिकी सेना जल्द ही अपना काम पूरा कर लेगी। सेना प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के करीब हैं। और फुटबॉल में भारत ने भूटान को 5-0 से हराकर सैफ पुरुष अंडर-20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट